We have got 6 to 8 months in hand, starting from mid of November और third week of November up till June, July. उससे पहले एग्जाम होना थोड़ा अनलाइकली है, can happen but it's still unlikely. So we have got about 6 to 7 months. We have got 19 subjects. Even if you have done it from anywhere or not done it, this is the perfect plan that is going to work out for you. Why this is going to work out for you? Because we have mentored more than 70 to 80 people to glory last year in the NEET PG exam. We have started from 60, 70, 80 corrects and gone on to get 150, 160 corrects. More than that, we have also produced AIR 69 this year, and that is why this plan is going to work out for you. So focus, stay tuned, take a pen and paper and note down everything that is I am going to share in this particular video. नंबर 1 थिंग, पेपर का एनालिसिस क्या है. सबसे पहले हमने क्या क्या करा था 2018, 19, 20 में कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आए थे, कितने क्वेश्चंस आए थे. ठीक है, सो अप टिल दिस पॉइंट 20 तक अबाउट 300 क्वेश्चंस का पेपर होता था. ठीक है, उसके बाद द पैटर्न हैड चेंज, 200 क्वेश्चन का पेपर होने लगा. एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आर, स्पेशली हाई यील्ड की बात करूँ अगर मैं, पैथ, फार्मा, माइक्रो, एफएमटी, सर्जरी, ओके, एंड मेडिसिन से सब कुछ आता है, लेकिन मेडिसिन बहुत वास्ट है तो मैं हाई यील्ड में कंसिडर नहीं करूँगा. सो कौन से हमारे मेजर सब्जेक्ट निकल के आए, हमारे मेजर सब्जेक्ट निकल के आते हैं पैथ, फार्मा, माइक्रो, सर्जरी, पीएसएम, ऑब्स, गाइनी. These 6 subjects combined are going to give you 60 to 65% क्वेश्चंस का आंसर. तो हमें स्पेशल फोकस करना है इन 6 सब्जेक्ट्स को मास्टर करने में ड्यूरिंग आवर फर्स्ट रीड. एंड व्हाट इज मोर एसेंशियल इज कंसाइजिंग दीज 6 सब्जेक्ट्स, क्योंकि अगर हमारे पास कंसाइज मटेरियल नहीं है बाय द एंड ऑफ दिस साइकिल, देन रिविजन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ फॉर ऑल ऑफ यू. सो मेन नोट्स सबसे पहले पढ़ के उसको रिवीजन नोट्स में या तो इंक्लूड कर लो या रिवीजन नोट्स को पढ़ लो सीधा, अगर हमने मेन नोट्स पहले से पढ़ रखे. ठीक है, देयर कैन बी अ फ्यू सब्जेक्ट्स जिसमें तुमने सेकेंड ईयर में या फाइनल ईयर में थोड़ी मेहनत करी थी, एंड यू मस्ट हैव हैड read from the main videos, from the main notes. Now what you can do is simply go directly to the revision notes and then solve PYQs. तुम्हारा सॉर्ट आउट हो जाएगा. वापस उन वास्ट मेन वीडियोस पर जाने की ज़रूरत नहीं है. जो भी पॉइंट्स तुमको लगता है PYQs में है और तुम्हारे नोट्स के अंदर मिसिंग है, then you can definitely add those points to the revision notes and make that thing good enough to be revised in the end, and that material will include most of the things that you think you are not having in your revision notes. अगर हमने कुछ भी नहीं किया है, if you have not done anything from these 6 subjects, study it from main notes. ठीक है, we still have time, we can cover this, and then in the same read we have to concise it. If we can give 7 to 8 days per subject, 45-50 days के अंदर हमारे ये सारे 6 सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे, and easily doable है. 6 to 8 hours per day की अगर हम स्टडी डाल देंगे तो हमारे 45 डेज में कवर हो जाएगा. 60% ऑफ द पेपर 45 डेज में अगर हम कवर कर लेते हैं, then we are at a significant advantage. But what we need to do, stay consistent, start now. If you think any of these things में तुम्हें डिफिकल्टी हो रही है, या तो तुम्हें कंसिस्टेंट रहने में प्रॉब्लम हो रही है या स्टार्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म अभी फिल आउट कर दो, so that I am going to reach out to you, talk to you, understand your problem, what mistakes you made last year, what can be done to rectify those mistakes. These are a few things that we'll speak about, and that is how you are going to get an advantage in the next 50 days itself. GTs को use करेंगे to build and then reflect upon the mistakes and keep building. So revision cycles are never for concising. You have to concise during your first read itself, क्योंकि पहली बात, तुम अभी पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, तुमने MBBS किया है, तुम्हारा ये सब कुछ हो रखा है. ठीक है, मेन नोट्स का पर्पस सिर्फ उन्हें एक बार पढ़ना ही है, कंसाइज्ड वर्जन ही इंक्लूड करना है आगे चलते हुए. ठीक है, कंसेप्ट्स जो हमने समझ लिए उसको हमें रिवीजन मटेरियल के अंदर नहीं इंक्लूड करना बिल्कुल भी. अगर मैं बात करूँ किसी चीज़ की, अगर मैं बात करूँ ऑप्टिक न्यूराइटिस की, ठीक है, तो इटियोलॉजी क्या है उसकी, क्या कॉजेशंस है, ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ये हमें समझना ज़रूरी है ड्यूरिंग फर्स्ट रीड. टी सेल आते हैं, फ्री रेडिकल रिलीज होता है, टी सेल पे और बी सेल को अट्रैक्ट करते हैं, है ना, पेरिन्यूरल एडिमा हो जाता है, डीमाइलिनेशन हो जाता है. बट ये सब चीज़ें हमें इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, हमें ये सब चीज़ें उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है अपने कंसाइज नोट्स के अंदर. हम सिर्फ ये लिख सकते हैं कि डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर है. ईटीओ में हम लिख सकते हैं फंगस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, क्या क्या कॉजेज हैं, इसको भी एक्रोनिम में लिख दो, शॉर्ट फॉर्म में लिख दो. इसके अंदर भी लिख दो कि माइकोबैक्टीरियम टीबी से हो जाता है, क्रिप्टोकोकस से हो जाता है, तो सीसी लिख दो, एमटीबी लिख दो. जितना शॉर्ट होगा ना, मेंटल बैरियर लास्ट में एकदम कम हो जाएगा.
ठीक है। अगर हम सब कुछ लिख देंगे अपने कंसाइज मटेरियल के अंदर भी, बट फिर क्या होगा, फिर कंसाइज मटेरियल बड़ा हो जाएगा तो हम कर ही नहीं पाएंगे। सो आइडियली वी हैव टू राइट ओनली शॉर्ट हैंड एंड एक्रोनिम्स। सिर्फ हाई यील्ड फैक्ट्स पे फोकस करना है, वी डोंट हैव टू राइट दी होल कंसेप्ट, ठीक है। स्क्लेरा का भी मैंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे। 2 ही टॉपिक है जिनसे मेनली क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। स्क्लेरोमलेशिया परफोरेंस पे क्वेश्चन आया था 2022 नीट के अंदर, और स्क्लेरा में मेनली एपिस्क्लेराइटिस स्क्लेराइटिस के डिफरेंसेस में क्वेश्चन आते हैं। तो अब तुम्हें पूरे मैकेनिज्म लिखने की जरूरत है। सुपरफिशियल वेसल होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, तो 10% फेनाइलेफ्रिन टेस्ट से ब्लैंचिंग हो जाती है, ऐसा हो जाता है। तुम्हें बहुत छोटे में लिख देना है, इसमें पॉजिटिव है इसमें नेगेटिव है, 10% फेनाइलेफ्रिन टक टक, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे वर्क करना पड़ेगा एंड दैट वी विल हेल्प विद दैट, डोंट वरी अबाउट इट। सो नाउ यू विल बी हैविंग 2 कैटेगरीज, ठीक है। तुम्हारे एक ऐसे सब्जेक्ट्स भी है अनाट, फिजियो, बायोकेम, जिसमें हमें 20 से 25 दिन देने, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आते हैं, यील्ड भी है और कंसेप्ट बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट नोट्स करो और सॉल्व मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। मेनली अनाट में किस पे फोकस करना है, न्यूरो अनाट पे फोकस करना है, एम्ब्रियो पे फोकस करना है, कैडेवरिक डिसेक्शन वीडियोस जो फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे, उस पे फोकस करना है और मोर क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है, ठीक है। ये एसेंशियल है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास कौन से सेट ऑफ सब्जेक्ट बचे, 3rd सेट ऑफ, ठीक है। मीडियम वाले, छोटे वाले, मीडियम वाले, पीड्स, ऑर्थो, रेडियो, डर्मा, साइकेट्री, एनेस्थीसिया छोटे वाले हो गए, ईएनटी ऑफ्थाल मीडियम वाले हो गए, ठीक है। हमारे पास क्या है एवरेज, अगर मैं बात करूँ इन सारे सब्जेक्ट्स की, तो ऑर्थो, रेडियो, इनके 130 पेजेस के आसपास के नोट्स हैं हमारे, ठीक है। 130-140 एवरेज किसी भी प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूँ। हमें इसे कंसाइज करना है, 40-45 पेजेस तक बीच में लेकर आना है, ठीक है। इफ यू कैन गेट दीज नोट्स इनटू 40-45 पेजेस, वी आर गोइंग टू बी एबल टू रिवाइज एवरीथिंग वेरी वेल एंड कंसाइज मटेरियल में हमारा सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। सो शॉर्ट सोर्स यूज करो, bulk it up with PYQs or anything that you find in GTS is important, is marked correctly by more than 50-55% of the people, but you made it wrong. Use it here, bulk up your very short source वाले notes and then build from there. हमें धीरे धीरे बेसलाइन को अप करना है, ठीक है। हमें उस पर फोकस नहीं करना कि हमारे पहले दूसरे रिवीजन में या पहली रीडिंग के बाद सीधा 150 आ जाए। फर्स्ट रीड के बाद 100 के आसपास आ जाओ, उसके बाद धीरे धीरे करके बढ़ाते रहो, ठीक है। बेस लाइन को इंक्रीज करते रहो। दिस इज माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 9116324253। कोई भी डाउट है, रीच आउट टू मी ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। कोई भी डाउट पूछ लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कितना भी डाउट, कोई चाहते हो कि तुम सर प्लीज़ इस वीडियो पे बनाओ कुछ, इस टॉपिक पे कुछ बनाओ, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। अगर कोई ऐसे सीनियर्स है जिन्होंने अभी नीट पीजी क्रैक किया था, ठीक है, और कुछ हेल्प करना चाहते हैं, कुछ यूजफुल टिप्स देना चाहते हैं अपने जूनियर्स को, तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली उसको इंक्लूड कर दो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।